Yes, good evening everyone. So, my dear students, after completing the topic chemical bonding, now we will start with the new chapter, that is modern periodic table. So, this topic will include some fundamentals of periodic table and periodicity, that means properties of different elements as they are arranged in periodic table. So periodicity and periodic properties or fundamentals of periodic table. And after this chapter, we will move to S block element, P block element. Okay. So the modern periodic table, what we know about this modern periodic table? It is a periodic table which is approved by IUPAC system. IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry जो यूनियन है that has approved this table जो internationally accepted है. Till date 118 elements are discovered. Some are man-made. So this 118, some are man-made. After this Rutherfordium 104, all are man-made, जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं, synthetically prepared, artificially prepared. So in periodic table we have 7 horizontal rows. We have 7 horizontal rows and we call this as the period 7 horizontal rows. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 horizontal rows known as period, correct? And 18 vertical columns. ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इसमें ये वर्ड ऐड करते जा रहा हूं. हॉरिजॉन्टल हमें पता है ना, लेटरली. तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज known as period and 18 vertical columns. तो ये कॉलम तो हम यूज करते हैं टर्म, है ना. 18 vertical columns. Column number 1 hydrogen, column number 18 helium, inert gases. So 7 horizontal rows and 18 vertical columns will make a periodic table which accommodate 118 elements. Total 118 elements are placed. We also see in this modern periodic table or the long form of periodic table, at the bottom there are 2 series of elements. 2 series. Each series has 14 elements in it. So they are named as lanthanide series after the element lanthanum, and another is named as actinoid series after the element actinium. तो ये lanthanum La, actinium Ac. After these elements 14 other elements are placed: cerium to lutetium and thorium to lawrencium. So these 14 elements are placed at the bottom. They are derived from here, 6A and 7th. 6th and 7th सीरीज में से उसे डिराइव किया गया है और ये 14 एलिमेंट. आई विल एक्सप्लेन दिस आफ्टरवर्ड लिटिल कि ये ऐसा क्यों किया गया. सो फंडामेंटल बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिख रही है, 18 वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, एंड दे आर placed in the increasing order of their, ये एलिमेंट्स को अरेंज कैसा किया बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. So 118 elements.
जैसे यहाँ पर देखे ये स्कैंडियम 21, उसके पहले कैल्शियम 20, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, यानी क्या देख रहे हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहाँ भी देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सो एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इसके पहले एटॉमिक मास से एक ने किसी साइंटिस्ट ने कोशिश किया था, एक ने प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया था, वो सब हिस्ट्री है. उस हिस्ट्री में नहीं जाके हम देखेंगे डायरेक्टली कि जो पीरियोडिक टेबल आज की तारीख में एक्सेप्टेबल है उसमें क्या क्या है ना. तो 18 वर्टिकल कॉलम, 7 हॉरिजॉन्टल रोज arrange elements in the increasing order of their atomic number. तो atomic number से arrange किया गया है. And in this periodic table there are 4 blocks. ये आपको समझाएंगे हम. This periodic table they are divided into 4 blocks. आपने structure of atom पढ़ा है, उसमें सब ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल. उसी बेसिस पे इसमें 4 ब्लॉक्स किए गए. एक है s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको s, p, d, f में क्यों सेपरेट किया गया है? बिकॉज s ब्लॉक को आप देखेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन s ऑर्बिटल. इन p block again the last electron is added in p orbital. सेम d में और f में होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर d ऑर्बिटल में जाता है तो वो d ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में. तो इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच पर्टिकुलर ऑर्बिटल. जैसे 4 ब्लॉक s, p, d, f. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू s ऑर्बिटल तो उन सभी को s ब्लॉक में रख दिया. आप यहां देख सकते हैं, मैं अभी जस्ट ये स्पेस को यूज करता हूं. आप देखिए, लिथियम लीजिए या सोडियम लीजिए. लिथियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. हो गए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन. लिथियम 3 है तो लिथियम 1s2, 2s1. लिथियम is 3, हीलियम is 2, तो लिथियम is 3, 1s2, 2s1. बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? s में. सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? s में. आप उसके बाद कैल्शियम को देख लो, 20 है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 के बाद 4s2 आता है. ऑफ बाउ प्रिंसिपल लगाएंगे तो वैसे 3d आना था, लेकिन पहले फिल क्या होता है? 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी उससे थोड़ी ज्यादा है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 10 10 20 हो गए, 20. लास्ट इलेक्ट्रॉन s. इसीलिए लिथियम, सोडियम, कैल्शियम all are s block elements. Is it clear? और s block में 2 कॉलम्स आ गए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. They are in s block because why in s block? Last electron enters in s orbital. Is it clear? s हो गया. अब पीरियोडिक टेबल थोड़ा अलग तरीके से है, उसमें p ब्लॉक राइट एक्सट्रीम कॉर्नर में गया. यहां पर देखेंगे आप, ये p ब्लॉक आपको दिखेगा, करेक्ट है. तो p ब्लॉक कहां जा रहा है? वो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में p ब्लॉक है. और s
एस तो अभी देखा आपने, एस ब्लॉक कहाँ है, 1 and 2, तो ये एस ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो है उसमें कितने कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 13 से 18 तक, 13 से 18 तक, दे ऑल आर पी ब्लॉक। अब इनको पी ब्लॉक क्यों बोला जाएगा, वही लॉजिक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी ऑर्बिटल। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, ये जितने ग्रीन और थोड़े से ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये सारे पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। आप देखेंगे एक्सेप्शन रहेगा हीलियम, है ना, एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम में कितने आता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2, तो 2s2 तो पी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद के सारे सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। आप जैसे समझने के लिए फिर से यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिए, आप फास्फोरस को ले लो, नाइट्रोजन दिख रहा है 15 में, अब फास्फोरस के बदले सल्फर लेते हैं, नेक्स्ट वाला सल्फर 16, सही है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, पी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में गया। इसके आगे और होगा क्या कुछ फिलिंग, नहीं ना, अरे ये 7 के जगह 9 कैसे फिल कर दिए मैंने, 3 होना बेटा, क्या बात है, सिली मिस्टेक हो रही है, हजारों बार इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, है ना, N7 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3p ऑर्बिटल में। तो इसके आगे आएगा क्या कुछ, नहीं, क्योंकि टोटल तो 7 हो गया, आगे के ऑर्बिटल not required. So once again, last electron enters in p orbital, therefore nitrogen is a p block element. यहाँ दिख रहा है आपको। सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हाँ जी, कितने करने पड़ेंगे, 3p4, ये 10 हो गए, तो 12 और ये 4 16 16। फिर से बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, और हम देख रहे हैं कि सल्फर फिर से पी ब्लॉक में चला गया। आप यहाँ पर इनर्ट गैस को देख लो जो 18 में है, एक्सेप्ट हीलियम। एर्गॉन को देखो आप, एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आ गए ये 10 and 8 18, ये 8 है, ये 10 है, टोटल आ गया 18, अर्गॉन 18, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, पी ऑर्बिटल में। तो ये पी ब्लॉक हमें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के, ये है पी ब्लॉक, ओके। तो एस ब्लॉक समझा आपको, पी ब्लॉक समझा, अब ऐसा ही डी ब्लॉक भी होना चाहिए, ऐसा ही एफ ब्लॉक होना चाहिए। डी समझा देता हूं, एफ आप खुद समझदार हो, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, है ना, और हमको अभी यहाँ जगह उतनी नहीं मिल रही है। फिर से एक बार आते हैं बेटा, किस पे आते हैं कि डी ब्लॉक, एस समझा, पी समझा, डी वाला एग्जाम्पल, स्कैंडियम 21, जिंक 30, ओके। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो कितने हो गए, 10 and 10 20, 3d1, last electron goes to the d orbital and therefore scandium group 3 है, लेकिन ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक, करेक्ट है। ऐसा ही वो जिंक जो लास्ट में है, जिंक में क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और लास्ट में क्या आएगा, 3d
10, 3D10। समझ रहा है क्या ये सब कि लिख दूं मैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3D10। तो स्कैंडियम 21 ग्रुप 3 है, जिंक 30 ग्रुप 12 है। All are having last electron in d orbital. Therefore, scandium to zinc we have d block elements. वैसा ही सिमिलर f block में होगा, last electron will enter in f orbital and we see this f block elements, they are placed below this table, है ना? ये दो सीरीज है, ये f ब्लॉक की सीरीज है। ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड जो है ये कौन सा बनाते हैं? f सीरीज। तो दे आर नोन एज f ब्लॉक एलिमेंट्स। सीरीज है लेंथेनॉइड सीरीज, सीरीज है एक्टिनॉइड सीरीज, ब्लॉक क्या होगा? f ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने क्या समझा आज कि पीरियोडिक टेबल 7 horizontal rows, 8 vertical columns, 118 elements arranged in the increasing order of their atomic number. So atomic number is the periodic property of elements. Atomic number is the periodic property of element. On that basis हमने elements को place किया periodic table में increasing order। और अभी मैंने क्या explain किया कि इस पीरियोडिक टेबल को 118 एलिमेंट को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। पहला ब्लॉक क्या हो गया? एस ब्लॉक, उसमें 2 कॉलम है 1 and 2 एंड दिस एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं इसको? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में। पी ब्लॉक कहा जाता है? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। And it includes element group number 13 to group number 18 except helium। सही है? Clear? तो p block elements are from group 13 to 18, they are p block because last electron उसको हम कहते हैं differentiating electron। ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बताता ना मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, फिर वो कलर है या नॉन कलरलेस है, ये सब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन p ऑर्बिटल एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक में कौन से ग्रुप नंबर आते हैं? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। S और P के बीच में D ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल। तो यहां आप देखेंगे S ब्लॉक दिख रहा है, P ब्लॉक और ये D ब्लॉक आ गया। तो D ब्लॉक जो है, D ब्लॉक इज बिटवीन S एंड P। डन। S एंड P के बीच में आ गया ये D ब्लॉक। एंड D ब्लॉक में कौन से ग्रुप इन्वॉल्व है? ग्रुप नंबर 3 to 12. 3 to 12 are present in D block। सही है? Group number 3 to group number 12 are there in D block। Group number 3 to group number 12 are in D block because last electron, differentiating electron, enters in D orbital। Next is F block element, lanthanoid series and actinoid series. They have 14 elements each and their last electron enters in F, therefore they are known as F block element। In fact ये दोनों भी जो सीरीज है ये D ब्लॉक से डिराइव किया गया है। इसको यहां रखते ना तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाता। करेक्ट है? पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स और आ जाते हैं, तो 14 आ जाते हैं तो ये 18 प्लस 14 यानी और बड़ा पीरियोडिक टेबल हो जाता है।
इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया कि जो 14 एलिमेंट्स है उनकी सीरीज नीचे करवा ली है। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 14 एलिमेंट्स की सीरीज है। वी कॉल देम एज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। व्हाई वी कॉल देम एज लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड? क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लेंथेनॉइड के जैसी है, लेंथेनम। ये 14 एलिमेंट की सीरीज एक्टिनियम के जैसी है, यानी उनकी प्रॉपर्टी जो है एक्टिनियम से मिलती जुलती है, तो उनको एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। बेसिकली ये कहाँ होने चाहिए? डी ब्लॉक में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो पता लगा कि इनका आउटर इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है। आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एफ में। The outermost electron, the valence electron, the differentiating electron, the last electron, एक ही चीज है सब, है ना। Last electron goes to F. Therefore, they are placed as F block element at the bottom of the periodic table. तो 4 ब्लॉक समझे हमें यहाँ पर ना। अब एक एक हॉरिजॉन्टल सीरीज को देखेंगे अब, है ना। ये हॉरिजॉन्टल सीरीज को देखेंगे तो वैसे हॉरिजॉन्टल सीरीज शुरू कहां से हो रही है? एस ब्लॉक से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आ गए क्या पूरे? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आगे पूरे बन गए प्रॉब्लम, अच्छी बात है। ओके, तो ये नाउ वी विल फोकस ऑन दिस। ये बेटा अभी इसको इरेज करते। वी विल सी फर्स्ट वाला तो हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये हाइड्रोजन इज इन द फर्स्ट पीरियड, हीलियम इज ऑल्सो इन द फर्स्ट पीरियड। हाइड्रोजन इज इन एस ब्लॉक, helium is in p block in spite of having last electron in s orbital, but it is a inert gas, है ना। तो प्रॉपर्टी उसकी नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन से मैच होती है। हाँ, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बाकी का ऑक्टेट कंप्लीट है। बाकी के जैसी इसकी प्रॉपर्टी है इनर्ट प्रॉपर्टी। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मीनिंग है नॉन रिएक्टिव। तो लाइक नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट। इसीलिए एस में होने के बाद भी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होने के बाद भी हमने उसे कहां प्लेस किया है? पी ब्लॉक में। तो एक्सेप्शन है हीलियम, बाकी सब सही है। अब ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लिथियम कहां से शुरू हुआ? एस ऑर्बिटल से। एस ऑर्बिटल से शुरू हुआ लिथियम में इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, खत्म कहां पर हुआ? 2s1 में। करेक्ट है, 1s2 2s1। ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एस ब्लॉक है ये। और नियॉन क्या है? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के। एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन p ऑर्बिटल, तो ये नियॉन गया p में। यानी हॉरिजॉन्टल रोज शुरू होती है एस ब्लॉक से, खत्म होती है पी ब्लॉक में, और उसके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहे। होगा सही? तो ये तो सेकंड सीरीज है। सेकंड सीरीज में डी ब्लॉक नहीं मिलते हमको, है ना। सेकंड सीरीज में डी ब्लॉक है क्या? नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नो डी ब्लॉक। थर्ड आ जाओ, थर्ड कहां से शुरू हो रहा? सोडियम से। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। खत्म कहां हो रहा है? एर्गॉन। कौन सा ब्लॉक है? पी। लेकिन बीच में डी नहीं है। डी कहां से होगा? थर्ड हॉरिजॉन्टल रो से।
थर्ड हॉरिजॉन्टल रो से क्या होगा शुरू? डी ब्लॉक एलिमेंट। सही है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज बिगिनिंग फ्रॉम थर्ड रो स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम। तो बेटा ये हमने सेकंड रो हॉरिजॉन्टल रो ये पढ़ा सेकंड पीरियड। अब थर्ड पीरियड पढ़ सकते हैं सिमिलरली, अभी मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। थर्ड पीरियड में क्या है? सोडियम मैग्नीशियम से लेके एर्गॉन तक। तो थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम से एर्गॉन तक। फिर से कहाँ शुरू हो रहा है? एस ब्लॉक। खत्म कहाँ हो रहा है? पी ब्लॉक। बीच में डी नहीं है। ये थर्ड पीरियड हो गया। ओके, और एटॉमिक नंबर भी देख लो। सोडियम कितना है? 11 और एर्गॉन है 18। आप लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। नाउ दिस इज द थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड देख लिया हमने, एस और पी इन्वॉल्व है। अब फोर्थ पीरियड पे आ जाइए, बिगनिंग फ्रॉम पोटेशियम। फोर्थ पीरियड beginning from potassium, calcium, then scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, आयरन, थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और ये लास्ट में जाएगा क्रिप्टॉन तक। सही है? अब कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये 2 एलिमेंट हो गए। ये पूरे 18 आ रहे हैं इसमें, पूरे 18। फर्स्ट और सेकंड में कितने थे? 8। 8 क्यों थे? क्योंकि डी वाले मिसिंग है उसमें। फोर्थ पीरियड में डी के 10 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 10 इन बिटवीन। तो ये 10 इन बिटवीन है, ये 2 है, ये 10 है, और पी ब्लॉक में बेटा कितने हैं? 6। पी ब्लॉक में 6। तो कितने हो गए टोटल? 18। 2 एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के 10 और पी ब्लॉक के 6। टोटल 18 हो गए। फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो विच इज नोन एज फोर्थ पीरियड। फोर्थ हॉरिजॉन्टल रो of fourth period is what? Consisting of 18 elements. 2 of S block, 10 of D block, 6 of P block. So again beginning from potassium S block between D10, D के 10 elements और P के 6. How much time? Okay. तो ये फोर्थ पीरियड हो गया। वैसा ही सिमिलर फिफ्थ पीरियड दिख रहा है आपको। फिफ्थ पीरियड देखेंगे, रुबिडियम से शुरू हो रहा है। स्ट्रॉन्शियम एंड रुबिडियम इन एस ब्लॉक। वाइट्रियम, वाई सिर्फ लिखा है सिंबल, वाइट्रियम इज डी ब्लॉक और वो खत्म होता है कैडमियम पे। और लास्ट मिलता है हमको जेनॉन। ओके, तो ये जेनॉन, रुबिडियम से जेनॉन तक के फिर से कितने एलिमेंट आ गए? 18 एलिमेंट। आर यू गेटिंग इट? तो फिफ्थ पीरियड में कितने हैं? 18 एलिमेंट। फोर्थ पीरियड में कितने थे? 18 एलिमेंट। फर्स्ट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। सेकंड में कितने एलिमेंट है? 8। 8 है सेकंड में। थर्ड में कितने एलिमेंट्स हैं? हेलो, बोलना है आपको, सोना नहीं है क्लास में। थर्ड इज 8। फोर्थ कितना लिखा है? 18 एलिमेंट। फिफ्थ कितना लिखा है? 18 एलिमेंट। अब फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स आ गए। सिक्स्थ और सेवेंथ में, फोर्थ बेटा कितने हैं? 18 है। फिफ्थ में भी
18 है, 6 और 7 पीरियड की बात करें हम, कहाँ लिखे हम, 6th पीरियड देखेंगे आप। 6th पीरियड 2 फ्रॉम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के तो 2 आ गए, पी ब्लॉक के 6 आ गए, डी ब्लॉक के 10 आ जाना चाहिए, सही है। कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं, 6। इस डी ब्लॉक में से एक, इस डी ब्लॉक में से एक और कौन सा ऑफशूट आता है इसका, ये लेंथेनम से 14 एलिमेंट। तो यहां पर 14 कौन से मिलते हैं, एफ ब्लॉक के। कितने आ गए बेटा, 14 आ गए एफ ब्लॉक के। टोटल कर लो 2 यानी 18 प्लस 14 कितने हो गए, कितने 2, 32। तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, 32। आर यू गेटिंग इट। 18 यहां दिख रहे हैं, 57 to 71 ये एफ ब्लॉक में चले गए, है ना। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो ये 14 जो है ये एफ ब्लॉक के है, इसके साथ इंक्लूड कर दिए तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, है ना, 55 to 86 कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 32। उस 32 में से 14 कहाँ गए, एफ ब्लॉक में, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका 6th पीरियड। ऐसा ही 7th पीरियड भी हो जाएगा, सेम लॉजिक, 18 प्लस 14 32। यहाँ देखिए 7th पीरियड, ये खाली दिख रहा है आपको, यहाँ खाली दिख रहा है, तो ये एक्टिनियम का है। एक्टिनियम यहाँ गया और उसके साथ 14 एलिमेंट, तो फिर से 18 प्लस 14 तो वो 32 आ गए। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो 2, सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो दैट इज पीरियड इज 8, थर्ड पीरियड 8, फोर्थ 18, फिफ्थ 18, सिक्स्थ 32, सेवेंथ 32, सिक्स्थ में 32 में 32 माइनस 14 कहां पर जाएंगे, और सेवेंथ में 32 माइनस कहां जाएंगे, एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक के ये दो सीरीज है, इसके नाम क्या है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके, तो ये अभी हमने किस हॉरिजॉन्टल रो और पीरियड में कितने एलिमेंट्स है ये पढ़ लिया। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ। कल पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके।